بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں الاؤ، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ عابدہ نے کھڑکی کھول کر آصف کی بہن فرزانہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ مجھے فرزانہ کے بلانے پر افسوس ہوا۔ اس گندے گھر میں کسی باکرا کا آنا جانا مجھے کیسے گوارا ہوتا، لیکن کیا کہتی، کس سے کہتی؟ تھوڑی دیر بعد ساری منڈلی اکٹھی ہو گئی۔ وہ لوگ بھٹی صاحب کے معاملے پر ہی بحث کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے کہ اسی کی وجہ سے بھٹی صاحب کو ان سب پر شک گزرا ہے۔ ان کے درمیان اس حرام خور میاں جی کو لیڈر کی حیثیت حاصل تھی۔ امی اس ساری گفتگو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں۔ والد تو سہمے ہوئے نظر آتے تھے، ان کی وکالت میری امی ہی کر رہی تھیں۔ رات گئے تک وہ لوگ وہیں جمع رہے، پھر دفع ہو گئے۔ اس دوران فرزانہ میرے پاس کئی مرتبہ آئی۔ وہ مجھے بڑی محبت سے باجی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ شاید آصف نے اسے اعتماد میں لے لیا تھا، لیکن میری طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ میں تو اس کی گفتگو بھی بڑی بددلی سے سن رہی تھی اور جواب میں صرف ہوں ہاں کہہ کر رہ جاتی۔ معاف کیجئے باجی، میں شاید آپ کو بور کر رہی ہوں۔ بالآخر اس نے کہہ ہی دیا، ارے نہیں، دراصل میری طبیعت ذرا خراب ہے، اس لیے۔ میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ بھائی جان بیچارے تو بڑے پریشان ہوں گے آپ کی طبیعت کا سن کر۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور مسکراتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ ایک مردہ سی مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ آصف نے واقعی اسے اعتماد میں لے کر اپنی اور میری محبت سے آگاہ کر دیا تھا۔ عموماً ایسی معصوم محبتوں کا آغاز یوں ہی ہوتا ہے۔ خط لکھے جاتے ہیں، انگوٹھیاں، رومال اور خوشبوئیں نظر کی جاتی ہیں، چوری چھپے پارکوں اور سینماؤں میں ملا جاتا ہے۔ باہمی رابطے کے لیے کسی ایک شخصیت کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، جو عموماً ہیرو یا ہیروئن کی بہن ہوتی ہے۔ شاید آج سے ہزاروں سال پہلے جو لوگ محبت کرتے تھے، انہوں نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا تھا، اور صدیوں سے یہ راز سینہ بسینہ منتقل ہوتا آ رہا تھا۔ میں نے لاکھ چاہا کہ اپنے خیالات کے دھارے کا رخ آصف کی سمت موڑ کر اذیت ناک سوچوں سے فرار کی کوئی راہ ڈھونڈوں، لیکن فرار کی راہ نصیب نہ تھی۔ رات کا کھانا کھائے بغیر میں اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ساری رات کربناک سوچیں مجھے ڈستی رہیں۔ کبھی جی چاہتا ابو کو سارے حالات ایک خط کے ذریعے لکھ کر بتا دوں اور خودکشی کر لوں۔ کبھی دل چاہتا کہ ہنڈیا میں زہر ملا دوں اور ہم سارے اسے کھا کر اکٹھے مر جائیں، لیکن میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ پائی۔ بالآخر جس فیصلے نے مجھے مطمئن کیا وہ خاصا مثبت تھا۔ میں نے سوچا اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابو کو امی کے کرتوت کا علم نہ ہو۔ جب وہ خود کئی مرتبہ رات گئے شراب کے نشے میں دھت دوسروں کی بہو بیٹیوں سے منہ کالا کر کے گھر لوٹتے تھے، تو امی کے متعلق انہیں کیا غلط فہمی ہوتی؟ وہ خود امی کو اپنے افسران کی خدمت میں سفارش کے لیے بھیجا کرتے تھے، اس لیے ان سے بات کرنا بے سود تھا۔ تایا جی جو کبھی کبھی آیا کرتے تھے، وہ میری صرف اخلاقی مدد ہی کر سکتے تھے۔ میرے سامنے صرف ایک ہی راہ تھی کہ میں جی جان سے محنت کروں، جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر آصف کا ہاتھ تھاموں اور اس گھناؤنے ماحول سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کر جاؤں۔ آصف پر اتنی جلدی اعتماد کرنا بھی عجیب سی بات تھی، لیکن انسان جو ہمیشہ خوش فہم رہا ہے، خود کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی ڈھکوسلا، کوئی بہانہ بھی تراش ہی لیتا ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آصف مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، زندگی بھر میرے قدموں سے قدم ملا کر چلے گا۔ یہ ضرور تھا کہ فی الحال اسے اعتماد میں لینا غلط تھا۔ اس فیصلے پر پہنچ کر میں گہری نیند سو گئی۔ صبح جب مؤذن نے خدا کی عظمت کا اعلان کر کے اور نماز کو نیند سے بہتر بتا کر فلاح کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی، تو میں نے اٹھ کر اس مالک کائنات کے حضور سجدہ شکر گزارا اور گڑ گڑا کر دعا گو ہوئی کہ مولا اب تو ہی میری رہنمائی کر، میرے ماں باپ کی خطاؤں سے درگزر فرما، انہیں صراط مستقیم پر چلا اور میری معصوم بہن کو اس غلیظ ماحول سے محفوظ رکھ۔ نماز پڑھ کر میرا دل خاصا ہلکا ہو رہا تھا۔ میں نے بڑی بہن ہونے کے ناطے اس بات کا عہد کیا تھا کہ عابدہ کو حتی الوسع کوشش کر کے
माँ के चंगल से निकाल लूं और कोशिश करूंगी कि उसके सैर सपाटों में कमी आ जाए। सुबह मैंने खिड़की खोलकर अपने महबूब के दर्शन किए और उसे नवीद दी कि आज मैं दाखिला फॉर्म लेने जा रही हूं। नाश्ता करके मैं तैयार होकर चल दी। बाजार के एक कोने में आसिफ मेरा मुंतजिर था। मुझे देखते ही उसके चेहरे की रंगत बदल गई। बड़ी होशियारी से हम एक दूसरे से बज़ाहिर लापरवाह एक दूसरे की धड़कनों पर चलते चले जा रहे थे। कॉलेज के बस स्टॉप पर उतरकर वो बेधड़क मेरे नजदीक आ गया। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं, फॉर्म लेकर आ जाओ, उसने मेरे नजदीक आकर कहा। मैंने चाहा ना कर दूं, लेकिन यह सिर्फ ज़हन का फैसला था, दिल का नहीं। दिल तो जाने कब से आसिफ के संग बैठकर उससे जमाने भर की बातें करने को चाहता था। मैं मुस्कुरा दी और वो बाहर रुक गया। थोड़ी ही देर बाद हम दोनों एक रिक्शे में बैठकर एक होटल की तरफ जा रहे थे। खुदा जाने आसिफ ने पहले ही से यह होटल ताड़ रखा था या उसे मालूम था कि हम जैसियों के लिए शहर में यही गोशाए आफियत है। रिक्शे में शर्म के मारे मैं दोहरी होती जा रही थी। जिंदगी में किसी गैर मर्द के नजदीक बैठने का यह पहला इत्तेफाक था। आसिफ बोलता रहा, मैं सुनती रही। मुझे यहां भी यही खौफ दामनगीर था कि रिक्शे वाला शीशे में हम दोनों को बातें करते देख रहा होगा। ब्लू हेवन छोटा सा स्नैक बार था। उसके ख्वाबनाक माहौल में बैठकर आसिफ ने मुझसे जी भर के बातें की। उसने अपना सारा ज़ख़ीरा अल्फाज मेरी तारीफ में खर्च कर डाला। उसने मुझे यकीन दिलाया कि सिवाय मौत के और कोई ताकत उसके और मेरे दरमियान दीवार नहीं बन सकती। उसके एफएससी के इम्तिहानात होने वाले थे। वो अपनी आला पोजीशन के लिए बड़ा पुरएतमाद था। उस रोज उसकी शख्सियत से मुतल्लिक दो बातें मेरे जहन में घर कर गईं। पहली तो ये कि वो कोई आम किस्म का लौंडा नहीं, खुसूसी अहमियत का हामिल लड़का था, और दूसरी बात यह कि उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन, बहुत ताबनाक है। उसने मुझे एफएससी में रखने वाले मज़ामीन और उनकी बारीकियों से आगाह करते हुए वादा किया कि मेरे डॉक्टर बनने के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए वो अपनी सी कोशिश कर गुजरेगा। करीबन 2 घंटे बाद जब हम होटल से बाहर आए तो मैंने कल के सारे वाकयात भुला दिए थे। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की तसव्वुर कर रही थी। एतमाद की दौलत से माला माल मेरा हर कदम घर की समत एक नए अज़्म और वल्वलाए ताज़ा के साथ उठ रहा था। होटल से कुछ दूर एक बस स्टॉप पर पहुंचकर हम अलग अलग हो गए। हमने अगली मुलाकात के लिए अभी से मंसूबाबंदी कर ली थी। मुख्तलिफ इशारे मुकर्रर कर लिए थे। आसिफ ने बताया फरजाना उसकी बहुत प्यारी बहन है और उसने उसे एतमाद में ले लिया है। फरजाना उसके इस फैसले पर बहुत खुश थी। वो तो खुद यही चाहती थी कि उसका भाई अपने जैसी लायक फाइक लड़की को जीवन साथी बनाए। घर पहुंची तो कियामत टूट गई। बाजी बाजी, हम लोग थोड़े दिनों तक निशातपुरा में मुंतकिल हो रहे हैं। हाय अल्लाह, अब्बू ने बड़ी खूबसूरत कोठी किराए पर ली है। शुक्र है खुदाया, इस जलील मकान से तो निजात मिलेगी। आबदा ने मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। वो ना जाने क्या क्या कहती रही। अल्लाह किसी की मोहब्बत को यूं नजर ना लगाए। आगाज़े सफर ही में कोई यूं ना लुटे जैसे मैं लुटी। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमारा सफर का आगाज हुआ। अभी तो तवील मुसाफतों की समत हमने कदम उठाए ही थे। राह मोहब्बत में अभी तो मुझसे पहला बाकायदा गुनाही सरजद हुआ था। ये एक मुलाकात की इतनी महंगी कीमत, ये चंद पल की खुशियों का इतना मोल, कैसा इंसाफ मालिक तेरा। आबदा की बात सुनते ही मेरी तमाम हिस्सियात को मौत आ गई। यूं लगा जैसे किसी ने अचानक कलेजे में खंजर घोंप दिया है। कॉलेज का दाखिला फॉर्म हाथों में पकड़े कांप कांप गया। लरसते कदमों से मैं अपने कमरे की तरफ चल दी और बेदम सी होकर बिस्तर पर जा गिरी। सांसों का ताना बाना मुंतशिर होता दिखाई दे रहा था। चारपाई पर लेटे हुए यूं महसूस हो रहा था जैसे छत जमीन पर और जमीन छत पर आ रही है। जैसे निज़ाम हयात के तमाम सैयारे अपने मदार से हटकर एक दूसरे से टकरा गए हैं। आंखों में चिंगारियां सुलगने लगीं, एक आग सी बदन में फैलने लगी। हाय अव्वलीन मोहब्बतों का खुमार, कैसी मुबारक सातें होती हैं वो। इन दुखों में भी कैसी लज्जत और क्या सुरूर होता है। दोपहर हो रही थी। दिल भर आया, फांसी सी गले में अटक गई।
मैं बेसुध होकर लेटी रही। जाने कब मुझे नींद आ गई। शाम गए, आंख खुली तो जिस्म बुखार में तप रहा था। आपदा के साथ एक डॉक्टर की दुकान पर गई। उसने इंजेक्शन लगाकर दवाई और गोलियां पल्ले बांध दी। गोलियों ने मेदे तक पहुंचते ही मुझे नींद की आगोश में पहुंचा दिया। अलसबा जब आंख खुली तो जिस्म पसीने में भीग रहा था। बुखार उतर चुका था। तबीयत में जरा कसलमंदी सी थी। मैंने उठकर वुजू किया और खालिक के हुजूर रोते हुए हाथ फैला दिए। जरूरी है मेरी किसी करनी का फल था जो इब्तदा ही में जुदाई मुकर्रर हो गई थी। नमाज के बाद तबीयत खासी हल्की हो गई। नाश्ते से फरागत पाते ही अम्मी और आबदा के रोकने की परवाह किए बगैर फॉर्म दाखिल करवाने कॉलेज रवाना हो गई। आसिफ प्रोग्राम के मुताबिक कॉलेज के बाहर मेरा मुंतजर था। फॉर्म जमा करवा कर मैं बाहर आ गई। रिक्शे में तो मैंने जब्त किए रखा, लेकिन जैसे ही हम होटल के कैबिन में बैठे पैमाना सब्र छलक गया। मेरे लाख जब्त के बावजूद आंसुओं का तेज धारा फूट निकला। अपनी हिचकियों का गला घोंटते हुए मैंने आसिफ को हिजरत की खबर सुनाई। पहले तो उसके चेहरे का रंग बदला, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने खुद पर काबू पा लिया। शायद वो मेरे सामने बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं करना चाहता था और खुद भी सोगवार होकर मेरा हौसला तोड़ने से गुरेज़ां था। पगली, इसमें रोने की क्या बात है? निशातपुरा यहां से है कितनी दूर? मैं रोजाना तुमसे मिला करूंगा। आखिर तुम कॉलेज तो आया करोगी। उसने मेरा हौसला बढ़ाया। फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर, अगर कहें तो घर के सामने धूनी लगाकर बैठ जाऊं। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दी। आंसुओं से भीगी वो मुस्कुराहट कैसी होगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो लम्हे सरमाया हयात बन गए हैं। अगर ये मुकद्दस यादें भी मेरा ज़ादे राह ना होती तो जहन्नम के ये रेज़गार जो आज मैं पाट चुकी हूं, कब की उनके दरमियान ही कहीं भुसम होकर रह जाती। जाने कैसी कैसी अजाबनाक बस्तियों से गुजरी हूं मैं, कैसी कैसी अलमनाक घड़ियां बीती हैं मुझ पर, लेकिन मैंने उन मुकद्दस इमानतों को वक्त की आंधियों, बगोलों, तूफानों से हमेशा बचा कर रखा है। अपने जी जान से बढ़कर उनकी हिफाजत की है मैंने। आसिफ ने मुझे उम्मीद दिलाई कि वो कभी इन बातों को खातिर में नहीं लाएगा, कभी ऐसी मजबूरियां उसके पांव की जंजीर नहीं बनेंगी। उसने मुझे दिल लगाकर पढ़ने की तलकीन की और मुझसे वादा लिया कि मैं अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करूंगी। मैं डोली में नहीं बैठी, सुहागन नहीं बनी मैं। मेरे सपनों को एक एक करके मौत आई है। मेरे हाथों में कभी मेहंदी नहीं रची, लेकिन मुझे इल्म है रुखसती के वक्त दुल्हनों पर क्या गुजरती है। बाबुल के आंगन से जुदाई के समय नैनों से कैसे सावन की झड़ियां लगती हैं। मैं शहर वाले मकान से रुखसत होते वक्त फरजाना से लिपटकर बुरी तरह रोई थी। उस खिड़की की सलाखों को जिनसे गुजरकर आसिफ का प्याम मोहब्बत मुझ तक पहुंचा था, चूम चूम कर आंसू बहाए थे मैंने। अपने बोसीदा कमरे की एक एक दीवार से लिपटकर मैंने अपने लुटने की दुहाई दी थी, बाजी, मैं आपसे मिलने आया करूंगी। फरजाना ने रुंधे हुए गले से कहा, जरूर आना फरजाना, मुझे भूल ना जाना। मैंने सिसकी ली। आपको कोई भूल नहीं सकता बाजी, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। फरजाना ने मेरे गले में बाहें डालकर मुझे अपने सीने से लगा लिया। हम आपको दुल्हन बनाकर वापस लाएंगे बाजी। उसने मेरे कान में सरगोशी की तो मेरा दिल भर आया। निशातपुरा 9 दौलतियों की आबादी थी। नई कॉलोनी, नए लोग, नई कदरें, नई दोस्तियां, बिल्कुल अलग माहौल था शहर से ये। मेरी माँ ने फ्रिज फ्रीजर तो खैर से रखा हुआ था। यहां पहुंची तो सबसे पहले घर में इस मसले पर हंगामा खड़ा कर दिया कि टेलीविजन पुराना है, चैनल बहुत कम आते हैं, डिश भी लेनी है। रंगीन टेलीविजन आ गया, डिश लग गई, नया फर्नीचर आ गया, पर्दे बदल गए, नई कटलरी आ गई। फरमाइशें बढ़ने लगीं। वालिद साहब के हाथ लंबे होते गए, दावतों का जोर बढ़ने लगा। उन्होंने ये बात जैसे भुला ही दी कि भट्टी साहब की शक्ल में नंगी तलवार उनके सर पर लटक रही है, जो किसी भी लम्हे उन पर गिर सकती है। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। दूसरे तीसरे रोज आसिफ से मुलाकात होने लगी। हमने पत्थरों और दरख्तों पर
अपने नाम लिखने शुरू कर दिए। दरिया किनारे जमीन पर दिल बनाकर उसकी धड़कनों में दोनों को समोने लगे। हम उन कुंजों में घूमने लगे जहां कोयलें संध्या के गीत गाती हैं। हमने दरिया की लहराती बल खाती लहरों पर बैठकर एक दूसरे के संग संग जीने मरने की कस्में खाईं। बागों में दौड़ते हुए हाथों में हाथ देकर एकमुख रहने के पैमान बांधे। दरख्तों की ओट में एक दूसरे के दिल की धड़कनों को शुमार किया। लेकिन हमारे प्यार के तकद्दुस की इंतहा थी कि कभी आसिफ ने मेरे लबो लाली की मुस्कुराहट चुराने की कोशिश भी ना की। हमारी मोहब्बत तूफानी, लाफानी और जिंदा जावेद थी। आसिफ हर मुलाकात पर मुझसे तालीमी रिपोर्ट तलब करता, टेस्ट में आने वाले नंबरों का जायजा लेकर हिदायत देता। जब मैंने फर्स्ट ईयर पास किया तो उसका भी रिजल्ट निकला और मेरा महबूब अपने कॉलेज में टॉप कर गया। ये सब तुम्हारी दुआओं का समर है, तुम्हारी मोहब्बत का असर है। तुम मेरी कामयाब जिंदगी का आगाज हो। तुम्हें पाकर मैं जिंदगी के हर मैदान में सुरखरुई हासिल करूंगा। तुम मेरे अज़्म को महमीज लगाती हो। उसने उस रोज बेख्तियार मुझे अपनी धड़कनों में समोते हुए कहा। मैं खुद को किसी और आलम की मखलूक जान रही थी। कितनी खुश थी मैं। घर से इस दौरान मैंने आंखें बंद कर रखी थीं, जैसे कबूतर बिल्ली के खतरे से बंद करता है। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। आसिफ था, कॉलेज था या किताबें थी। घर में कौन आया कौन गया मुझे इसकी कुछ खबर नहीं थी। मुझे तो इस बात की भी खबर नहीं थी कि इस मुहज्जब आबादी में आकर अम्मी ने पर पुर्जे फैलाने शुरू कर दिए हैं और अब उन्हें अपनी खानदानी सलाहियतों के अता करदा जौहर खुलकर दिखाने के लिए सही मैदान मुयस्सर आ गया था और उनके जौहर नुमाया होने लगे थे। हमारा घर कॉलोनी के तमाम नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए पनाहगाह बनता जा रहा था। आए रोज किसी ना किसी बहाने कोई तकरीब बर्पा करके अम्मी इन लोगों को आपस में खुलकर मिलने के मौके फराहम करती और उसके बदले उनसे तहाइफ वसूल फरमा लेती। किसी को शक ना गुजरता। हर रोज कोई ना कोई जोड़ा किसी ना किसी बहाने से हमारे यहां आ जाता। अम्मी बड़ी तेजी से अपनी असल की तरफ लौट रही थीं। उस रोज फिर एक खास मीटिंग हमारे घर पर मुनक्किद हुई। एक क्लर्क रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसने पुलिस के सामने सबसे कह दिया था कि अगर उस पर आंच भी आई तो वह सबको भुसम करके रख देगा। उस बेचारे तक तो बमुश्किल 15वां-20वां हिस्सा पहुंचता था। खाते तो बड़े अफसरान थे। उसने ललकारते हुए कहा था कि वो सारे मगरमच्छ गिरफ्तार करवाएगा। इस बात ने तो सबकी नींदें हराम कर दी थीं। सबका ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने लगा था। उनकी मनहूस सूरतों पर लानत बरसने लगी थी। सबको अपने बचाव की फिक्र ने घुन लगाना शुरू कर दिया था। उस रोज उस चंडाल चौकड़ी का गुरु घंटाल मियाँ जी भी परेशान दिखाई दे रहे थे। वो सब एक दूसरे की जान को रो रहे थे। सब बुरी तरह फंसने वाले थे। शायद कानून कुदरत हरकत में आ गया था। उन पर हद नाफिज होने वाली थी। कोई दम जाता था कि उन्हें जवाबदेही के लिए कटहरे में जाना पड़े। मेरी वालिद की तनख्वाह से ज्यादा हमारे मकान का किराया था। शाहाना ठाट बाट अलग थे। वालिदा के चाव चौंचले नवाबजादियों से कम हरगिज नहीं थे। ये सारा धंधा जो चल रहा था तो पैसे के सर पर। इतना बेतहाशा पैसा यूं ही तो नहीं आ जाता। दोनों हाथों से लूट मार मचा रखी थी उन लोगों ने, लेकिन अब लेने के देने पड़ गए थे। सिवाय मेरे अम्मी के बाकियों को जैसे मौत आ गई थी। एक उनकी आवाज में तनतना था। नियाज मोहम्मद, घबराने की क्या बात है, मैं खुद मिलूंगी तुम्हारे इस भट्टी साहब से। उनके दफा होते ही अम्मी ने वालिद से कहा, वो तेरे बस की बात नहीं जोहरा, सिफारिश का तो उस पर उल्टा असर होता है। अब्बू ने तशवीशनाक लहजे में कहा, तू घबराता क्यों है? मेरे पास ऐसी ऐसी सिफारिश रखी है कि बड़े बड़े सूफियों का ईमान डगमगा जाए। वालदा ने खालिस कारोबारी लहजे में कहा। उस ऐसी ऐसी सिफारिश का मतलब अब्बू की तो समझ में आया हो या नहीं, मैं बखूबी जान गई। ये वो बदबख्त और मासूम लड़कियां थीं जो आंटी को दोस्त जानकर अपने दोस्तों के साथ उसके हां आया करती थीं। उनकी कमजोर रगें मेरी मां के हाथ में तो थीं। जब चाहती किसी को भी ब्लैकमेलिंग की धमकी देकर अपने ढब पर ले आती, और उसने ऐसा किया भी। यह अलग बात के मुंह की खाई। भट्टी साहब ने मेरी मां और उसकी भांजी को झिड़कियां दे देकर घर से निकाल दिया
اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ والد صاحب کی نگرانی اور سخت ہو گئی۔ میاں جی کے کہنے پر ساری چنڈال چوکڑی محتاط ہو گئی تھی، لیکن یہ کافر منہ کو لگی ہوئی چھٹتی کہاں ہے۔ ایک روز جب والد کی رال ٹپکی تو بھٹی صاحب نے ہاتھ ڈال ہی دیا۔ اگلے روز انہیں محکمانہ تحقیقات کے خاتمے تک معطل کر کے گھر بھیج دیا گیا تاکہ غیر جانبدارانہ تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اس روز والد گھر آئے تو میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ وہ ذرہ برابر گھبرائے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ زہرا، ایک در بند تو 100 در کھلے، انہوں نے کہا لگا کر کہا۔ اور کیا نہیں تو دیکھوں گی اس ایماندار کی اولاد کو، بچوں کو ناکن چنے نہ چبوا دیے تو زہرا نام نہیں، والدہ نے فلموں کے ولن کی طرح بڑے ٹھسے سے کہا۔ اس روز ساری رات میاں بیوی بھٹی صاحب کو گالیاں دیتے رہے۔ اگلے روز الصبح میری آنکھ زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سے کھلی تھی۔ آنکھیں ملتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئی، جہاں ایک تھانے دار اور 4-5 سپاہی والد صاحب کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔ زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دل دھک سے رہ گیا۔ میری یہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پولیس کو دیکھتے ہی مجھے سارے معاملات کی سمجھ آ گئی تھی۔ محکمانہ تفتیش نے والد صاحب کو مجرم ثابت ہونے پر پولیس کیس کروا دیا تھا اور اب پولیس ملزم کو گرفتار کرنے آئی تھی۔ عابدہ تو ڈر کے مارے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ والد کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن ایک ہستی ابھی تک مطمئن تھی، امی۔ امی نے بڑے نرم لہجے میں ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ ہم نیاز محمد کو گرفتار کرنے آئے ہیں، تھانے دار نے نظروں ہی نظروں میں امی کو تولتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن کس جرم میں؟ اس مرتبہ امی کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جرم کا پتہ بھی تھانے جا کر لگ جائے گا۔ تھانے دار نے پولیس کا لہجہ اختیار کر لیا۔ آئیے آئیے، آپ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھیے۔ امی فوراً ڈھیلی پڑ گئیں۔ نہیں نہیں، چلو تم تھانے چلو، اس نے والد کو اشارہ کیا۔ ایک حوالدار اپنی بیلٹ سے منسلک ہتھ کڑی کھولنے لگا۔ میرے گرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہ گئی تھی۔ حلق خوف اور شرمندگی کے مارے خشک ہو رہا تھا۔ اگر میں چیخنا چلانا بھی چاہتی تو چلا نہ پاتی۔ احساس ندامت نے مجھے زمین میں گاڑ دیا تھا، لیکن یہ صرف میری حالت تھی۔ میری ماں کا دم خم وہی تھا۔ آئیے جی بیٹھیے تو صحیح۔ اس دفعہ انہوں نے خالص بازاری لہجے میں تھانے دار کو مخاطب کیا تھا۔ ان لہجوں اور زبانوں کے پیچھے چھپے مطلب کا گیان پولیس سے زیادہ اور کسے ہوگا؟ وہ تو ایسی چیزوں کے ہی منتظر رہتے تھے۔ تھانے دار نے پولیس والی نظروں سے پہلے امی کی طرف، پھر منہ پھیر کر کونے میں کھڑی میری طرف دیکھا۔ شاید وہ امی کے اثاثے جانچ رہا تھا۔ میں نے منہ پھیر لیا اور اپنے نیم مردہ وجود کو گھسیٹتی کمرے میں واپس چلی گئی۔ تھانے دار نے سپاہیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور امی اور ابو کے ساتھ اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ میرے کمرے میں عابدہ سہمی سکڑی ایک کرسی پر ڈھیر ہوئی پڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ باجی کہہ کر میری طرف لپکی اور ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر رونے لگیں۔ قریباً 4 منٹ بعد اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ امی بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئیں۔ کون مر گیا ہے تمہارا؟ انہوں نے غصے سے کھولتے ہوئے ہمیں ڈانٹ پلائی۔ ایک بیٹی کے منہ سے یہ بات آپ کو عجیب تو لگے گی، آپ مجھ سے نفرت تو کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس کہنے کے لیے ایک بات بہرحال موجود ہے کہ کچھ بھی ہو وہ میری ماں تو تھی، لیکن اب میں منافقت نہیں کروں گی، سچ سچ سب کچھ کہہ دوں گی۔ اس لمحے میرا خون غصے سے ابلنے لگا۔ میرا جی چاہا آگے بڑھ کر اس عورت کا منہ نوچ لوں جو بدقسمتی سے میری ماں بھی تھی۔ چابی کہاں ہے سیف کی؟ امی نے عابدہ کو مخاطب کیا۔ میرے سرہانے کے نیچے رکھی ہے، عابدہ نے روتے ہوئے کہا۔ چپ کر جالو کی پٹھی۔ امی ہمیں سلواتیں سناتی چلی گئیں۔ میں روتے روتے چپ ہو گئی۔ ایک عجیب طرح کی کیفیت مجھ پر طاری ہونے لگی۔ مجھے بجائے ندامت کے غصہ آنے لگا، امی پر، ابو پر، عابدہ پر، اور سب سے بڑھ کر خود پر۔ کیا میں واقعی بزدل ہوں؟ میں نے سوچا۔ پولیس والے خالی ہاتھ اور بھری ہوئی جیبوں سے رخصت ہو گئے۔ امی بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئی تھیں اور والد صاحب گھر ہی پر رہے۔ ان سب کے رخصت ہوتے ہی انہوں نے ہمیں ننگی گالیاں دینی شروع کر دیں۔ انہیں اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر ہم والدین کو اکیلا چھوڑ کر
रोने धोने में क्यों मसरूफ हो गई थीं? अंदाजा फरमाया आपने, ये थे हमारे वालिदैन। दादी की तरबियत ने मुझे पाकीज़ा और बाकिरदार रहना सिखाया था, लेकिन सिर्फ जुबानी तरबियत दी थी। कोई तावीज़ घोलकर मेरे अंदर नहीं डाला था कि ये नज़रियात मेरे खून में गर्दिश करने लगते। मेरी रगों में मेरे बाप का खून था, रंग भी उन्हीं का चढ़ना चाहिए था। उस रोज पहली मर्तबा मेरे सोचने का अंदाज मनफी हुआ। बगावत का खुफ्ता आतिशफिशा मेरे दिलो दिमाग में कब से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। लावा पक चुका था। आज उसे पहली मर्तबा बहने की राह नसीब हुई। जाने कब से अपने अंदर अंगड़ाइयां लेती दादी अम्मा को मैं थपकियां देकर सुला रही थी। बिलाखिर वो सो गईं। अब मेरे अंदर मेरी मां बेदार हो गई थी और यही मेरी बर्बादी का आगाज था। मेरे जहन में बगावत का जो सांप कलबलाने लगा था, उसने सबसे पहले मुझे ही डसा। मैं अपने जहर का पहला शिकार बन गई थी। वो बेटियां जिन्हें बेगैरती के खौफ से लोग जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, बड़ी खुशकिस्मत होंगी। मुझे तो हवस के मारे वालिदैन ने मरने से बचाकर अपने हाथों जिंदगी के जहन्नम में झोंका था। मैं हिर्सो हवा के लपकते शोलों से कब तक अपना दामन छुड़ाती, कहां तक खुद को चिटकने से महफूज रखती। आखिर को मेरी हैसियत थी क्या? एक नातवां बेकस लड़की। मेरे जहन में पहली बात यह आई थी कि नेकी सिर्फ डिक्शनरी में लिखा जाने वाला लफ्ज है। अमली जिंदगी में उसका वजूद होता तो आज पुलिस खाली हाथ क्यों जाती? जब सबूत मिल गया था तो मुल्जिम के बच जाने का जवाज क्या था? मेरी पाकीज़गी खून होने लगी। मैंने सोचा, यहां तो जिसकी लाठी होगी वही भैंस हाँक कर ले जाएगा। मकाफात अमल का वजूद यकीनन होगा, लेकिन यहां तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। सुबह कॉलेज पहुंची तो मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मार्शल आर्ट सिखाने वाली टीम के सामने पेश हो गई। यह टीम हमारे कॉलेज में लड़कियों को एक खुसूसी कोर्स करवाने आई थी। इस हरकत का मुहर्रिक बज़ाहिर तो इंतकाम का जज्बा ही था, लेकिन किससे? इस बात की मुझे समझ ना आ सकी। असल में जब मेरे जहन ने ताकत के वजूद को तस्लीम कर लिया तो यह तहरीक खुद बखुद मेरे अंदर पैदा होने लगी कि यह दुनिया कमज़ोरों के लिए नहीं, ना ही मुआशरती तौर पर कमज़ोर लोगों के लिए और ना ही जिस्मानी और जहनी तौर पर कमज़ोर लोगों के लिए। अपनी निस्वानियत पर यह मेरा पहला भरपूर हमला था। मेरा आगाज ही बड़ा तेज और जज्बाती था। पहले रोज जब एक ब्लैक बेल्ट, जो न जाने कितने डॉन थी, जिसके चेहरे की बनावट हजारों साल पुराने तिब्बती लामाओं से मिलती जुलती थी, ने मुझे खड़े खड़े हाथ झुकाकर जमीन छूने को कहा और मैंने झट से वो अमल कर दिखाया तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, वेल डन, तुम आगे निकलोगी। आगे निकलने का यह पहला कदम था। आज मैं जहां पहुंच चुकी हूं उससे आगे कोई और रास्ता नहीं जाता। इस चौराहे तक पहुंचकर हर सम्त में सिर्फ पसपाई बाकी रह जाती है। आगे सिर्फ मौत है, मौत, और मौत ही कभी कभी निजात की वाहिद राह रह जाती है। वो लोग जो दिन में 2-3 मरतबा हालात के हाथों मरने की आरजू करते हैं, अपनी नीयत में पुरखुलूस होते हैं, लेकिन मरने से पहले आदमी जिस दहशतनाक मौत का तसव्वुर जहन में बांध लेता है, उसके बाद मरने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। पहले रोज जब मेरी सहेलियों को यह मालूम हुआ कि मैंने मार्शल आर्ट सीखने शुरू कर दिए हैं, तो उन्होंने हैरत से खबर सुनाने वाली को देखा और उस वक्त किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया जब तक मुझे अपनी आंखों से वो सब कुछ करते देख नहीं लिया। पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है उसका। जब 3-4 रोज बाद हड्डियां तिड़कने लगेंगी तो साहबजादी को देखेंगे। कमाल है, इतनी एग्रेशन, या तो भीगी बिल्ली बनी बैठी रहती थी। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ज़ुबानें, मुख्तलिफ रिमार्क्स, लेकिन एक अज़म था कि साबित कदम रहा। अम्मी की वापसी उस खबीस मियाँ जी के साथ हुई थी और उनके हाथों में ज़मानतनामा था। उन्होंने अब्बू की कबलस गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर करवा ली थी। बच्चे हैं अपने, किसकी हिम्मत है जो इस शहर में रहकर मियाँ की बात मानने से इनकारी हो? उसने मेरे वालिद के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। मियाँ जी, हम भी सब बात समझते हैं। वालिद का लहजा उस लम्हे बड़ा घनावना था। यूं ही आपकी चौखट से नहीं लगे। नियाज मोहम्मद, हौसला रख। अगर तेरे भट्टी का मक्कू ना ठप दिया तो अपनी माँ का जनाना बताइयो। मुझे कमरे के सामने से गुजरते देखकर वो कुछ ज्यादा ही खराफात बकने लगा। आबदा ने हस्बे साबिक उनके लिए चाय तैयार की।
میری والدہ ایسی خوش نظر آ رہی تھیں جیسے امی نے بڑا میدان مارا ہے۔ میاں اور اس کی آنکھوں میں لہراتی شیطانی چمک سے مجھے گھن آنے لگی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور مسہری پر لیٹ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آصف کو اپنی اصلیت بتلا دوں؟ اچانک ایک خیال کوندے کی طرح میرے ذہن پر لہرایا۔ نہ پگلی، کبھی بھول کر بھی یہ خیال دل میں نہ لانا۔ مرد ذات ہے، بدگمانی کا شائبہ تک اس کے دل میں پیدا نہ ہونے دینا۔ عقل نے رہنمائی کی، لیکن یہ غبار پھر چھٹے گا کیسے؟ کسی نہ کسی کو تو رازدار بنانا ہی ہوگا۔ میں نے دلیل پیش کی۔ خاموش ہو جا، زبان اور ذہن کے سارے دریچے بند کر کے بیٹھی رہ۔ خبردار، یہ تیری معمولی سی غلطی ساری زندگی کا روگ بن جائے گی۔ اگلی وارننگ ملی اور میں نے واقعی سب کچھ بھلا دیا۔ میرے ذہن میں میرے تبتی لاماؤں جیسی شکل والے انسٹرکٹر کے الفاظ گونجنے لگے۔ ویل ڈن، تم آگے نکلو گی۔ اور احساس تفاخر سے میری گردن خود بخود تن گئی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ